Hello everyone, welcome to our Concepts पढ़ाएंगे सबको सिखाएंगे campaign video. And today in this video, I'll be discussing a very important concept under the Indian Contract Act, and that is communication and revocation of offer and acceptance. So हमें पता है जब हम किसी भी contract में enter करते हैं तो सबसे पहले there is an offer which comes into existence and then there is an acceptance with respect to that. So ये जो पूरा entire process of contract formation start होता है offer से and then there is an acceptance and all. So with respect to that, communication of that offer and acceptance, that is very important. Until and unless आपने जो offer दिया है वो communicate होता है सामने वाले को जिसे आप दे रहे हो, या जो सामने वाले ने acceptance देना है उस offer के लिए, until unless वो communicate हो रहा है offer को, how can a contract come into existence? So offer and acceptance का communication बहुत ही important है contract formation. अब ये जो offer and acceptance दिया है parties ने, क्या उनके पास option है कि वो उसे revoke कर सकते हैं, withdraw कर सकते हैं? तो yes कर सकते हैं, but with respect to that there are certain conditions. All those aspects we'll be covering in this particular video. Do subscribe to our channel and stay tuned so that you can stay updated. You can contact us through this email ID or you can call us on this number if you have any questions or queries. आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो जहाँ पे कि आपको डिटेल्स मिल जाएंगे with respect to the various competitive exams. Now looking on to the communication of offer and acceptance, तो offer and acceptance का communication जो है when that will be considered to be complete, अब हम उसे देखेंगे. So communication of offer is complete. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एक जो ऑफर दिया है एक पर्सन ने, उसका कम्युनिकेशन जो है कब कंप्लीट माना जाएगा. When it comes to the knowledge of the person to whom it is made. So जिस पर्सन को वो ऑफर दिया जा रहा है उसके नॉलेज में आ जाता है वो ऑफर, तो हम कहेंगे there is a communication of offer. With respect to acceptance, communication of acceptance is complete. कब हम उसे मानेंगे? As against the proposer, तो आप समझ सकते हो दो फेजेस में बेसिकली होगा, प्रपोजर के अगेंस्ट एंड एक्सेप्टर के अगेंस्ट. एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर कौन है? जो पर्सन ऑफर दे रहा है. व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम बाय द एक्सेप्टर, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है उस प्रपोजल को, उसने उस एक्सेप्टेंस को जो है ही हैज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. सो नाउ व्हेन ही हैज डन दैट, इट इज आउट ऑफ हिज पावर टू विथड्रॉ दैट. तो तब हम मानेंगे कि एज अगेंस्ट द प्रपोजल देयर इज अ कम्युनिकेशन ऑफ acceptance that is complete when it is being posted to him or it is put into the course of transmission to him by the acceptor. With respect to or as against the acceptor, हम कब मानेंगे communication of acceptance that is complete? When the proposer as is the person who is making the offer, when the proposer is acquiring the knowledge of such acceptance, तो जिसने ऑफर दिया था उसके नॉलेज में आ जाता है वो एक्सेप्टेंस, तो हम मानेंगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट है किसके? एक्सेप्टर के कॉन्टेक्स्ट में. और ये पूरा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. सो ए एक पर्सन है जिसने सोचा कि वो अपना हाउस सेल करना चाहता है बी को, तो उसने एक लेटर सेंड किया बी को कि आई वांट टू सेल माय हाउस एट अ सर्टेन प्राइस. अब इसमें कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है, प्रपोजल जो है, व्हेन इट इज कंप्लीट, व्हेन बी इज रिसीविंग दैट लेटर, व्हेन इट इज कमिंग to his knowledge. Now if we talk about the acceptance, so B is going ahead and accepting A's proposal by letter, he is sending by post. अब जो है communication of acceptance को कब complete माना जाएगा? हमने देखा था दो phases में था, as against the proposer that is A, so as against A when the letter that is posted, and as against B who is the acceptor when the letter is received by A. So ये हो गया हमारा communication of offer and acceptance. Now looking on to communication of revocation, so रिवोक कर सकते हो, हमने देखा था. ओके, मैंने एक ऑफर दिया था, ए ने एक ऑफर दिया था पी को कि वो अपना घर सेल करना चाहता है एक सर्टेन प्राइस पे. मे बी उसने बाद में माइंड चेंज कर लिया, मे बी उसे अब रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ही इज थिंकिंग कि वो जो उसने ऑफर दिया था उसको रिवोक कर देगा, विथड्रॉ कर देगा. सो कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, सो विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज मेकिंग द रेवोकेशन, व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कंप्लीट? When it is put into the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who is making it. So as against the person who makes it, मतलब जो person जो है, पार्टी जो है रिवोक कर रही है अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को, उसके कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? When he is putting into the course of transmission that revocation to the other person, obviously to whom it is made, so that वो out of the powers of the person है who makes it. Okay, so then is the communication of revocation complete, and as against the person to whom it is made, अब जिसको revocation send किया जा रहा है उसके context में communication of revocation कब complete होगा? Obviously when it comes to his knowledge. Again जो हमारा पिछला example था उसको हम
कंटिन्यू करेंगे. ए ने लेटर सेंड करना है बी को कि ही वांट्स टू सेल हिज हाउस एंड ऑल. सो ए ने, मैंने बोला लेटर ऑन ही इज चेंजिंग हिज माइंड दैट ही डजंट वांट टू गो अहेड विद द ऑफर ही हैज गिवन. सो ही रिवोक्स हिज ऑफर बाय अ टेलीग्राम. अब ए के कॉन्टेक्स्ट में द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड. सो व्हेन ही इज डिस्पैचिंग द टेलीग्राम, वहां पे जो है ए के कॉन्टेक्स्ट में रिवोकेशन जो है कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू बी, जब उसके नॉलेज में आ रहा है. ठीक है, ये जब ए ने अपने ऑफर को रिवोक करने का सोचा, उसके कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट है वो हो गया. अगर बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहा है टेलीग्राम से, तो बी के कॉन्टेक्स्ट में रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा? व्हेन बी ने टेलीग्राम को डिस्पैच किया. और ए के कॉन्टेक्स्ट में कब होगा? व्हेन दैट टेलीग्राम रीचेस ए. ठीक है, सो ये हो गया कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन. इसका हम सिंप्लीफाइड भी देखेंगे एक चार्ट के बेसिस पे, जिसमें आपको समझने में आसान होगा. टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो कब तक कर सकते हो? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज देयर इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ओनली इफ यू मेक द रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ वैलिड वन. ठीक है, सो ऑफर कैन बी रिवोक्ड. ऑफर कब तक रिवोक कर सकते हो? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. So with respect to acceptance, it can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor. Acceptor के context में when the communication of acceptance is complete, वो तभी तक कर सकता है but not later than that. Again, हमारा जो previous example था, moving ahead with that, A ने propose किया लेटर से B को house sell करने के लिए, B accept proposal by a letter sent by post. ठीक है, अब इसमें जो है कब तक ए के पास ऑप्शन कि वो रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को. सो ए मे रिवोक हिज प्रपोजल एनी टाइम और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. बी जब तक अपने एक्सेप्टेंस को वो जो है पोस्ट नहीं करता है, तब तक ए के पास ऑप्शन है कि वो उसको रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को. एंड इफ वी टॉक अबाउट बी, बी जो है अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कब तक कर सकता है? कैन डू एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग दैट एक्सेप्टेंस दैट रीचेस ए. तो जब तक लेटर ए को नहीं मिलता है रिस्पेक्ट टू दैट एक्सेप्टेंस, बी के पास टाइम है कि वो उसे रिवोक कर सकता है. आई नो ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो अब हम इसे एक चार्ट के थ्रू देखेंगे. ठीक है, ये हमारा पूरा कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है. तो हमारा सेम जो एग्जांपल था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो दिस इज पर्सन ए हु इज द ऑफरर, दिस इज पर्सन बी हु इज द ऑफरर. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. सो पहला हमने देखना है कि ए ने जो है डिसाइड किया कि he wants to sell his house, so he is making an offer through a letter which he is posting on 1st of Jan 2021 B को कि he wants to sell his house at a certain price. वो लेटर जो उसने पोस्ट किया वो बी को रिसीव हो रहा है who is the offeree on 8th of Jan. So now if we talk about the communication of offer, that is completed on 8th of Jan when that letter is received by B or it is coming to his knowledge that A is making such and such offer. So communication of offer हमारा 8th को complete. अब अगर हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करें तो हमने देखा था वहां टू स्टेजेस में था, एज अगेंस्ट ऑफर, एज अगेंस्ट ऑफरी. ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ए के कॉन्टेक्स्ट में कब कंप्लीट हो जाएगा? 10th of Jan को होगा, जब बी ने अपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को पोस्ट किया. ठीक है, एंड एज अगेंस्ट ऑफरी बी के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाएगा? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय ए और व्हेन इट इज कमिंग इनटू द नॉलेज ऑफ ए, सो दैट इज 15th of Jan. सो बी के कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 15th of Jan को कंप्लीट हो जाएगा. सो ये हमारा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अब जैसा हमने देखा था कि आप रिवोक भी कर सकते हो अपने ऑफर को या एक्सेप्टेंस को, बट not at any time. There is a specified time. Till then you have the option to go ahead and revoke it. तो अब A जो है उसके पास रिवोक करने का अपने ऑफर को टाइम कब तक है? जब तक B जो है लेटर पोस्ट नहीं कर रहा है ऑफ एक्सेप्टेंस तब तक. So from 1st of Jan till 10th of Jan he has the time. क्योंकि हमने जब पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था? That revocation of offer that can be made at any time before the communication of its acceptance is complete as against the offerer but not
afterwards. So till 10th he has the time to revoke his offer. Same if we look onto the context of ऑफरी, तो ऑफरी ने जो है 10th को पोस्ट कर दिया अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, 15th को रिसीव हो गया, नॉलेज में आ गया एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. सो बिटवीन 10th to 15th of Jan this time duration is there जब B रिवोक कर सकता है अपने एक्सेप्टेंस को. ठीक है, सो B has the option to revoke his acceptance any time when before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor. Okay, so as against the acceptor कब complete हो रहा है? 15th को. तो till 15th of Jan B has the option to revoke his acceptance. तो ये हमारा entire communication of offer and acceptance है. Stay tuned to our channel so that you can prepare 50% faster with us at iExamB.